नेशनल सीनियर सिटीजन डे की बहुत बहुत मुबारक। ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू and on my personal behalf, I extend a warm welcome to Honorable Shri B.R. Sharma ji, our former Chief Secretary, former Secretary to Government of India, and former Chairman of Jammu and Kashmir Public Service Commission. We are indeed grateful to you, sir, for having spared time to be with us and then agreeing to preside over this event. This is our first time that we are holding this event. We could have celebrated any day in a different manners. But this time we thought, thanks to our Noida-based Melcon Solutions, that they suggested that we hold this type of awareness lecture. And from that side, we welcome Dr. Sumit Mahajan. Dr. Sumit Mahajan is basically son of this soil. He is very, very dear to us. He is currently Chief Consultant and Head of Orthopedics and Joint Replacement of Apollo Hospital, Amritsar. Dr. Sumit Mahajan keeps coming on Jammu on every Sunday because his parents are here. And we are indeed grateful to him that he has agreed to deliver this lecture. Ectopic dermatitis, cardiovascular diseases, respiratory diseases. अब recently कोरोना हुआ था last year 2 साल सारे डॉक्टर विटामिन डी खिला रहे हैं भर के किसी को then Crohn's disease, type 2 diabetes mellitus, kidney disease, osteoarthritis, even the dental problems, skin diseases, cancers, infectious diseases, and in fact decreased vitamin D is also related to the mental issues like depression and schizophrenia problem, and there is a positive correlation between vitamin D also. अब फीचर फिट है, अगर नहीं है उसके बाद तो वो कम ही है, तो उसको हमें बाहर से देना ही पड़ेगा विटामिन डी. So these are the things for vitamin D. Number second is the osteoporosis. Osteoporosis क्या होता है कि जैसे आप normally जैसे सर हैं अभी बिल्कुल स्ट्रेट है, जैसे अभी और ओल्ड होंगे तो थोड़ा सा बेंडिंग आ जाता है बॉडी में. So that is called as osteoporosis. Females को ज़्यादा होता है comparatively मेल से. And ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है अगर हम एक हड्डी की पीस को काटें उसके अंदर होल्स होते हैं, जब ये होल बाहर नहीं लोगे तो वो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा. अगर आप कैल्शियम लेते रहोगे लेकिन वो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं करवा रहा होगा हार्मोन, तब भी आपको ऑस्टियोपोरोसिस होगी. अगर आपके अंदर में प्रोटीन की कमी है तब भी आपको ऑस्टियोपोरोसिस होगी. सो ऑस्टियोपोरोसिस हैज गॉट फ्यू मिथ्स कि भाई मेरे को हो सकता है, मेरे को नहीं हो सकता, और कौन कौन से लोग हैं जिनको हो सकता है. सो इसके बारे में हम आगे जानेंगे. So osteoporosis is not serious enough for me, and it is, and I do not have to worry about that. So mind you, osteoporosis is the major. Secondly, there is a problem due to swollen tendons also in the knees. Just please explain. So the first part of the question is that surgeons are very, very clever. I think हमारी community में सब मेडिकल प्रोफेशन में सबसे ज़्यादा क्लेवर जो है ऑर्थोपेडिक सर्जन ही है. दे आर अ वेरी गुड मार्केट हियर. सो द नी रिप्लेसमेंट सर्जरी इज ऑलवेज अ रीसर्फेसिंग सर्जरी. हमने किसी का घुटना निकाल के, जैसे हार्ट सर्जरी होती है, हम किसी का हार्ट नहीं डाल रहे. वी आर नॉट पुटिंग समबडीज एल्स हार्ट. हम ये भी नहीं कर रहे और हम किसी का किडनी भी नहीं निकाल रहे. हमें आप ही का घुटने के ऊपर जो उसका कोटिंग है वो खराब जो हुआ है वो निकाल के उसके ऊपर हम कैप चढ़ा देते हैं. So that is called as knee replacement surgery. So this is what we are doing. This is what has been, we are doing in the past also. जो अभी सर्जन बोल रहे हैं कि हम रीसर्फेस कर रहे हैं, they are, वो आपको वही लफ्ज को कुछ और पैकेज में डाल के आपको प्रेजेंट कर रहे हैं. Different branding. This is a branding, And number second is this swollen tendon or this swelling in the knee, and your knees are all right. That can occur in the mild to moderate
osteoarthritis, where you do not require a knee replacement and still you are feeling swelling in your knee, then you should apply some ointment, ice packs, and you should also put some knee cap, do some exercises, avoid some exercises. That is also do some exercises and avoid some exercises. Both are the part of this, and take some medicines, anti-inflammatory, that will reduce your swelling for some time, and then you can switch over to your normal life. You mentioned of the ice pack. Shri Vijral's question, resurfacing and replacement. जनरली हम तो मतलब आम आदमी की भाषा समझते हैं कि रिप्लेसमेंट की नया ही घुटना डाल दिया और रिप्लेसमेंट उसको रवा करके फिट कर दिया। तो मार्केटिंग के हिसाब से सरफेसिंग सस्ती होनी चाहिए, रिप्लेसमेंट महंगी होनी चाहिए, तो फिर ये अलग क्यों करते हैं? महंगी सच्ची तो ऐसी है कि सर बात कि ये तो हमने नहीं बना रखा, पहली चीज। दूसरी चीज सर, घुटना तो वही आएगा ना। घुटने में 3 पार्ट्स होते हैं, एक तो ऊपर कैप जो चढ़ती है फीमर की, एक टीबिया की कैप चढ़ती है और बीच में प्लास्टिक होता है। सो एनपीपीए से पहले जो मोदी गवर्नमेंट में एनपीपीए लाया था, वी यूज्ड टू डू नी रिप्लेसमेंट सर्जरी इन 4.5 lakhs. After that we have decreased that rate to 2.75. Then we have increased that rate because of the costing हमारी increase होती रही, and there are special methods and all that. Now we are doing in Apollo Amritsar at bilateral knee, दोनों घुटनों के पास at 3.10 में. It is far cheaper as compared to Delhi and Mumbai because they are charging about 5 or 6 lakhs. सर्जन सिटी बड़ी जितनी बड़ी उतना पैसा ज़्यादा, उतना गुड ज़्यादा। और अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करो, आई हैव ऑलरेडी ऑपरेटेड अबाउट 63 जॉइंट्स हियर इन जम्मू कश्मीर। कल भी मैंने एक हिप और एक नी किया है अंडर एट पल्स हॉस्पिटल अंडर आयुष्मान कार्ड, दैट इज completely free of cost. Completely free of cost. You also may have to pay because some test के लिए इसलिए बोलते हैं because sometimes you are not fit for surgery. If you are not fit for surgery, we will not do your surgery because this is an elective surgery. So it is free of cost, no पैसा। तो पैसे की तो बात ये रही। और resurfacing और replacement, there is no difference in joint replacement about a knee replacement and a resurfacing. Knee में, लेकिन hip में we have to replace। कप को ऊपर भी एक कप लगाएंगे, जो एस्टाबुलम का कप होता है उसमें भी कप लगाते हैं, जो फीमर में होता है उसमें भी एक डंडी लगाते हैं, उसको फिर जोड़ते हैं। दैट वी मेक अ न्यू हिप, दैट इज अ रिप्लेसमेंट सर्जरी। बट जो हम नी में करते हैं वो हम रीसरफेस ही करते हैं। एक तो घुटने टेढ़े घुटनों को सीधा करते हैं और उसके ऊपर कम कैप चढ़ाते हैं। ये अभी से नहीं हो रहा, जब से नी रिप्लेसमेंट बना है तब से हो रहा है। आज यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से जो सीनियर सिटीजन्स डे है, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे है, उसको मनाने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और क्योंकि हमारे सारे सीनियर सिटीज़न इसके मेंबर हैं और उसके लिए एक यहाँ पे एक लेक्चर का ऑर्गेनाइजेशन किया गया। डॉक्टर सुमित हैं जो बढ़ती उम्र के साथ जो समस्याएं होती हैं, खासकर नी और आर्थराइटिस, बोन जॉइंट्स के साथ, इनसे बेहतर किस तरीके से काबू पाया जा सकता है, इलाज कैसे इनको परहेज़ कैसे किया जा सकता है, तो उस पर एक लेक्चर का ऑर्गेनाइजेशन है किया गया। क्योंकि जो सीनियर सिटीज़न हैं इन्होंने देश की बिल्डिंग के लिए, नेशन बिल्डिंग में काफ़ी अपना योगदान किया है और अभी भी काबिलियत रखते हैं, विजडम है, मैच्योरिटी है। पर उसके साथ जो बढ़ती उम्र के साथ जो समस्याएं होती हैं उनके साथ जो काबू कैसे पाना है, उनसे निपटना कैसा, उनके लिए इनको इक्विप करने की ज़रूरत होती है। कई लाइफस्टाइल डिजीज़ होती हैं और कई रहती हैं जो बढ़ती उम्र का तकाजा है। तो जो बोन जॉइंट्स वगैरह ये एक बढ़ती उम्र का तकाजा है। इसके लिए जो सीनियर सिटीजन्स डे है उसको बनाने के साथ यहाँ पे एक इस लेक्चर का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है। सीनियर सिटीजन सोसाइटी सीनियर सिटीजन डे है और इस दिवस पे हमने सीनियर सिटीजन्स को एजुकेट किया ऑस्टियोपोरोसिस, विटामिन डी डेफिशिएंसी जो आजकल बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, और आर्थराइटिस के बारे में। घुटनों की दर्द आजकल सबको होती है, अर्ली एज में भी होती है, बट 60 के बाद ये होना बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है। तो इसको किस तरह से बचाया जाए, और अगर ये किसी को प्रॉब्लम ऑलरेडी हो चुकी है तो आजकल कौन सी फास्ट ट्रैक नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज हैं जो आप करवा के जल्दी ठीक हो सकते हैं और जल्दी अपने काम में जा सकते हैं, इसके बारे में हमने बताया सर। लोगों को यही मैसेज रहेगा, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। आप अपने घुटनों को बचाइए, एक्सरसाइज कीजिए, 10 मिनट साइकिल, आधा घंटा वॉक, ये करना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को फिट रखिए, अपना शरीर में कम से कम 1 घंटा 24 घंटे में से अपने शरीर को ज़रूर दीजिए, वो घुटनों के लिए हो या अपने शरीर के लिए हो, ज़रूर दीजिए।